Hello friends, welcome to all. Today is our lecture on synchronous machine. Synchronous machine is our chapter number 3 in syllabus of GTA. In our previous two chapter, we study about three-phase induction motor and single-phase induction motor. The three-phase induction motor we study all design related to stator, rotor and operating characteristics. Same as well as we study on the single-phase induction motor, where we study the how we can design the stator and rotor of single phase induction motor, and then we study about operating characteristics and leakage reactance of synchronous machine. A synchronous machine mainly consists of both synchronous motor as well as synchronous generator. In our AC system has some advantages than a DC system. So we preferred here a AC system more than a DC system. For that purpose, we have to generate our AC sources. So, for generation of AC sources, we use a AC electrical power generator, which is called a synchronous generator. And we, as well as we use a synchronous generator as a motor, which we call as a synchronous motor. So there are two types of synchronous machine: synchronous motor and synchronous generator. Synchronous machine AC, but we know that from the induction motor is also a AC machine. But in synchronous machine, in induction motor, there is a speed which is less than our synchronous speed. But in synchronous machine, there is a speed which is in synchronous speed. So the synchronous machine are operated as a synchronous speed, which is called 120 F by P formula, and we use here this speed for our revolution. So the speed of magnetic flux as well as the speed of rotor, both are synchronous speed. When we connected an electrical power system, a synchronous machine always maintain a relationship of Ns, which is equal to 120 F by P. So if the synchronous machine working as a motor, it fails to maintain this average speed, so the machine will not develop this sufficient torque to maintain the rotation, and it will stop, which we call a pull out step. In case when synchronous machine is operating as a generator, it has to run a fixed speed called a synchronous speed to generate the power at particular frequency, as all the appliances or machine are designed to operate at this frequency. Now we see the basic principle of synchronous machine. A synchronous machine is just an electromechanical transducer which convert mechanical energy into electrical energy, and sometimes electrical energy into mechanical energy. The fundamental phenomena on the synchronous machine is law of electromagnetic induction. What is law of electromagnetic induction? As we know that from the Faraday's first law, electromagnetic induction, the production of EMF induced in a conductor whenever it cut across the magnetic field. So this Faraday's law we use in a synchronous machine. There are three-phase synchronous machine. So the machine which is used to household appliances such as small machine used in air cooler, refrigerator, fans and air conditioner. However, the large AC machines are three-phase type synchronous machine because there are some reasons. For the same size of the frame, three-phase machine have nearly 1.5 times the output of the single-phase machine. And also the three-phase power is transmitted and distributed more economical than the single-phase power. Three-phase motor are self-starting, and also three-phase motor have an uniform continuous torque. But in single-phase motor there is pulsating torque. So we use a three-phase synchronous machine. Now we see the construction details about the synchronous machine.
So now we study about the construction of synchronous machine. A stationary armature rotating field type construction is preferred. High speed alternator have no salient pole rotors, where low speed alternator have salient pole rotor. The motor provided with the damper winding and the compensator with rating up to 100 MVR and speed up to 3000 RPM. तो मेनली जो कंस्ट्रक्शन है सिंक्रोनस मशीन का, उसके अंदर जो इंक्लूडिंग पार्ट होंगे वो स्टेटर और रोटर होंगे. उसके अलावा जो स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर कोर है, स्टेटर वाइंडिंग है, उसी तरह रोटर कोर है, रोटर वाइंडिंग है. नंबर ऑफ पार्ट जो है वो सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होंगे. जो स्टेटर फ्रेम है वो आउटर बॉडी पार्ट है हमारे सिंक्रोनस मशीन का, और वो जो है वो कास्ट आयरन का बना होगा. जो स्टेटर फ्रेम है वो इनर पार्ट जो है हमारे मशीन के उसको प्रोटेक्ट करेगा. उसके साथ स्टेटर कोर अवेलेबल होगा. स्टेटर कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, और स्टेटर कोर जो है वो नंबर ऑफ स्टैंपिंग से बना होगा. और नंबर ऑफ स्टैंपिंग प्रोवाइड करने का कारण क्या होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसको इजी पाथ प्रोवाइड करें, और जो वाइंडिंग है उसका एकोमोडेशन सही हो सके. उसके साथ स्टेटर वाइंडिंग जो है वो एक्चुअल में 3 फेज और 1 फेज वाइंडिंग दोनों हो सकते हैं. उसके लिए हमने वहां पर स्लॉट जो है वो कट किए होंगे. उस स्लॉट के अंदर हम जो एनिमल कॉपर है उसका वाइंडिंग करते हैं, और वो जो है वो स्टार कनेक्शन में होगा. और जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिफरेंट फेजेस है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अलग अलग स्लॉट के अंदर, जिससे हमें हमारा साइनसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो सके, और उससे हम साइनसॉइडल ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस कर सकें. उसके अलावा रोटर कंस्ट्रक्शन में सेलियन पोल टाइप रोटर होंगे और सिलिंड्रिकल टाइप रोटर होंगे. सेलियन पोल टाइप जो रोटर है वो हमें स्लो स्पीड अल्टरनेटर के लिए यूज करते हैं, जो कि वाटर व्हील टाइप अल्टरनेटर है, और जो है 4 पोल तक अवेलेबल होंगे. उसी तरह हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए हम नॉन सेलियन टाइप या फिर कह सकते हैं कि हम सिलिंड्रिकल टाइप रोटर जो है वो यूज करते हैं. वो 2 पोल और 4 पोल में अवेलेबल होंगे. वो टर्बो अल्टरनेटर टाइप जो है वो टर्बो टाइप अल्टरनेटर में यूज होते हैं. उसके अलावा 4 कोर और पोल शूज है, जो वो भी जो लेमिनेटेड स्टील की जो सीट है उसका बना होगा. और पोल कोर जो है वो हमें लो रिलक्टेंस पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए. और पोल शूज के कारण हम जो व्हील का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली जो है वो फ्लो कर सकते हैं, और हमें साइनसॉइडल वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है. उसके अलावा फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग है. जो वाइंडिंग हम डीसी सप्लाई जो अप्लाई करते हैं, स्लिप रिंग अवेलेबल होगी, उससे हम डीसी सप्लाई जो है वो फ्लो करेंगे, और वो हमारे रोटर का पार्ट होगा. यहाँ पर हम जो रोटर है उसमें हम फील्ड अप्लाई करते हैं, डीसी मशीन की उसमें हम स्टेटर में फील्ड अप्लाई करते हैं. उसके अलावा डैम्पर वाइंडिंग जो है वो आउटर मोस्ट पेरिफेरी जो होल्स है, आउटर जो हमारे वाइंडिंग है उसमें जो है होल्स प्रोवाइड होंगे, तो जिसमें हम कॉपर बार जो है वो इंसर्टेड करेंगे, और जो कॉपर बार है वो सभी शॉर्ट सर्किट होंगे, और एक रिंग फॉर्मिंग में हमें टेम्पर वाइंडिंग जो है वो मिलेगा. उसके अलावा रोटर कोर है वो भी सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग की बनी होगी, और रोटर वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग जो कि हमने बोला वो फील्ड वाइंडिंग होगा, तो रोटर में प्लेस करेंगे हम. उसके अलावा स्लिप रिंग है कि जो हमें डीसी सप्लाई जो है वो रोटर वाइंडिंग को प्रोवाइड करेगा. ब्रशेस होंगे कार्बन ब्रशेस, जो हमारी जो स्लिप रिंग है उसके ऊपर हमने अटैच किए होंगे, क्योंकि डीसी सप्लाई जो है वो देने के लिए हमें वर्क में लेंगे. जो करंट फ्लो होगा वो ब्रशेस के थ्रू ही फ्लो होगा स्लिप रिंग के अंदर. फिर बियरिंग जो है वो शाफ्ट के साथ अटैच होगा, और वो जो है वो हमें लो फ्रिक्शन देगा बियरिंग के कारण. उसी साथ साथ शाफ्ट होगी वो भी माइल्ड स्टील की बने होगी,
और वो जो है वो हमें मैकेनिकल पावर जो है वो देने के लिए या फिर मैकेनिकल पावर लेने के लिए मशीन के अंदर हम शाफ्ट का यूज करेंगे। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है वो हमारे सिंक्रोनस मशीन के डिफरेंट पार्ट्स है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। द बेसिक डिफरेंस of synchronous motor and induction motor here is type of excitation. A synchronous motor is doubly excited machine, where an induction motor is singly excited machine. Supply system. As we know that a synchronous motor excitation also provide here for getting a synchronous speed in induction synchronous motor, but in induction motor there is no excitation there. So type of excitation, the synchronous motor is doubly excited, where induction motor is singly excited machine. Now the supply system. Its armature winding is energized from AC source and its field winding is from DC source, and the stator winding is energized from AC source. As we know that the synchronous machine supplied, the armature winding is energized from AC source. The armature winding are placed in a stationary part, stator part, where DC field winding, which is rotating part, and also in a induction motor there is only AC source given to the winding. Now next speed, it always run at synchronous speed and the speed is independent of load. And if the load increase, the speed of induction motor decrease and it always less than the synchronous speed. So हमें मालूम है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसके अंदर ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड होगी, पर अगर लोड जो है लोड में भी चेंजेस आ जाए तो हम जो है वो स्पीड को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करके सिंक्रोनस स्पीड पर ला सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो स्पीड होगी अगर लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड इंडक्शन मोटर की डिक्रीज होगी, और जो इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो ऑलवेज लैगिंग होगी सिंक्रोनस स्पीड से। तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होगी उससे इंडक्शन मोटर की स्पीड ऑलवेज लैगिंग होगी। फिर नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस बिटवीन induction motor and synchronous machine starting. It is not self-starting and it has to be run up to synchronous speed by an means before it can be synchronized to AC supply. An induction motor is self-starting. So, as we know that three-phase induction motor is self-starting, where synchronous machine is not self-starting. It's the DC excitation are given to him. Now the next one is an operation. A synchronous motor can be operated with lagging and leading power by changing its excitation. But an induction motor operates at lagging power factor. At higher loads, the power factor becomes very poor. So synchronous machine are working as a lagging or leading power factor. As we know that in synchronous conductor there is a leading power factor, but induction motor always at lagging power factor. And if the load are increased, the power factor becomes very poor. Now the uses, it can be used for power factor correction in addition to supply or to drive mechanical loads. Induction motor is used for driving mechanical loads only. Synchronous motor are mainly purpose of synchronous motor is used as a power factor correction, as in power synchronous machine condenser are used by operating as a leading power factor machine, but induction motor are used as a only driving the load. Now the basic difference next is efficiency. It is more efficient than induction motor of the same output and voltage rating. An induction motor, its efficiency is lesser than that of synchronous motor of the same output and voltage rating. And cost. Synchronous motor is costlier than induction motor of the same output and voltage rating, but induction motor is cheaper than the synchronous motor of the same output and voltage rating. So the load when we use for as a load, synchronous motor are not used, but induction motor are widely used in industrial area.
Now the next one, output equation. As we know that we find out the output equation Q is equal to C0 d square ln s for DC machine, and also we find out this equation for the three-phase induction motor and single-phase induction motor. Now same strategy are used for the find out output equation of synchronous machine. तो यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन के अंदर भी हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, एक नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न जो है उसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई होने के कारण वो जो है वो रोटेट करेगा, वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो है वो P5 जितना फ्लक्स लेगा, तो P5 जितना फ्लक्स लेगा और जो वो 60 सेकंड में अगर n रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा, वो 60/n जितना लेगा, और उससे हम जो है वो उसका ईएमएफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वो हमने प्रीवियस सेमेस्टर जो था उसके अंदर हमने सिंक्रोनस मशीन का ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं वो इक्वेशन डिराइव किया हुआ था, और ईएमएफ इक्वेशन हमें मिलता है 4.44 kW f into 5, और वो जो इक्वेशन है उससे हम क्या करेंगे, आउटपुट इक्वेशन फाइंड करते हैं, जिस तरह हमने डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन में फाइंड किया था। तो आउटपुट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम आउटपुट इक्वेशन लेंगे, फिर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की वैल्यू से हम C0 d² ln जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो हमने जो इंडक्शन मोटर में और डीसी मशीन में जैसे डिराइव किया था वही जो है वो आउटपुट इक्वेशन वैसे ही हम सिंक्रोनस मशीन में डिराइव करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे उसके बारे में, सिर्फ आउटपुट इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आउटपुट इक्वेशन जो है वो Q इज इक्वल टू C0 d² ns रहेगा, और जो C0 है वो हमारा आउटपुट कोएफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 11 into VAV AC into kWs into 10⁻⁻3। यहाँ पर जो C0 है वो हमारा आउटपुट कोएफिशिएंट है, VAV जो है वो हमारा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, AC जो है वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है, kWs जो है वो हमारा वाइंडिंग फैक्टर है, D जो है वो हमारा डायामीटर है स्टेटर का, L जो है वो लेंथ है कोर की, NS जो है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है जो RPS में हम लेते हैं। तो ये जो आउटपुट इक्वेशन है उससे हम जो है वो हमारे d² L की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। d² L जो है वो हमारा मेन डायमेंशन है, और मेन डायमेंशन मिलने के बाद जो ओवरऑल साइज होगी हमारे मशीन की वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सब हमने इंडक्शन मोटर और जो डीसी मशीन है उसमें सब हमने ब्रीफली जाना था। तो यहाँ पर जो है वो हमें मालूम है कि d² L जो है वो फाइंड करने के लिए हमें पहले VAV और AC के बारे में जानना होगा। VAV यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, उसके बारे में जानने के बाद जो है वो हम D और L d² L जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर VAV और AC की वैल्यू हमारे पास हो तो हम C0 आउटपुट कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। आउटपुट कोएफिशिएंट को यहाँ पर पुट करके जो हमें आउटपुट और स्पीड मोटर की हमें चाहिए वो आउटपुट और स्पीड के लिए हमारे जो D और L की वैल्यू कितनी है वो हम जान सकते हैं, और D और L की वैल्यू मिलने के बाद जो ओवरऑल साइज होगी मशीन की वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल साइज मशीन की अगर मिल जाए तो उससे हम कोर जो है उसकी डिजाइन कर सकते हैं। कोर की डिजाइन करने के बाद जो नंबर ऑफ स्लॉट में कितने लेने हैं रोटर के अंदर स्टेटर के अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटर की साइज मिलने के बाद जो रोटर की टीप जो है वो कितनी होगी, उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर हम कितने प्लेस करेंगे, उसका सैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, उसके रिलेटेड हम सभी जो पैरामीटर्स है वो फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम जो है वो हमारी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक तक जा सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन रहेगा आउटपुट इक्वेशन वही हम आगे सभी जगह पर यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पहले जो सिंक्रोनस मशीन है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो हमने सीखा। फिर हमने जाना कि जो सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मोटर जो है उसके अंदर का क्या डिफरेंस है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जगह हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन की जगह पर हम थ्री फेज जो सिंक्रोनस मशीन है वो यूज करते हैं। उसके रिलेटेड हमने जो है वो जाना।
फिर ये जो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन जो है उसका डिफरेंस हमने देखा, उसमें हमने नंबर ऑफ डिफरेंस जो थे वो हमने देखे। फिर बाद में हमने कंक्लूड किया कि जो सिंक्रोनस मशीन है, अगर लोड की जगह पर बात करें किसी भी लोड को चलाने के लिए, तो हमें इंडक्शन मोटर जो है वो प्रिफरेबल रहेगी। और अगर जो है वो जैसे कंडेंसर बात करें या फिर जो लीडिंग पावर फैक्टर जो है वो हमें सिंक्रोनस मशीन दे सकती है, तो वो हम सिंक्रोनस मशीन यूज करते हैं। फिर हमने जो आउटपुट इक्वेशन है उसके बारे में जाना। आउटपुट इक्वेशन से हम जो है वो मेन डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, और मेन डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के बारे में हमें जानना। तो अगले लेक्चर के अंदर हम जो है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जो है उसके बारे में जानेंगे, और उसके रिलेटेड जो डिजाइन पैरामीटर्स है सिंक्रोनस मशीन के लिए वो सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो स्टेटर और रोटर जो है सिंक्रोनस मशीन की उसकी डिजाइन देखेंगे, फिर डैम्पर वाइंडिंग की डिजाइन देखेंगे। तो यहाँ तक तो इतना ही। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।